I have titled this sermon as Remember Your Past. अपने अतीत का स्मरण करो. Remember your past. Now, if you want to appreciate the progress that you have made in your life, it is important that we look to the past. अगर आपको आपके जीवन के अंदर आपने जो प्रगति की है, अगर उसको सराहना है, तो ये जरूरी है कि आप अपने अतीत में मुड़कर देखें. For example, why do we teach about the British rule in India in our schools and colleges? उदाहरण के रूप में हम क्यों हमारे स्कूलों और कॉलेजों में ब्रिटिश राज्य के बारे में सिखाते हैं? So that one reason is that so that our younger generation will also appreciate the independence that they enjoy today. एक कारण ये भी है ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जिस स्वतंत्रता का आनंद उठा रही है उसको वो और बेहतर सराह सके. Why do we remember the economic and social challenges that we faced after our independence? हम स्वतंत्रता के बाद हमने जो आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना किया उसका स्मरण क्यों करते हैं? So that we can appreciate the economic prosperity and social transformation that we experience today. ताकि हम जिस आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं उसको हम थोड़ा और सराह सके. Paul says that as Gentile believers we need to do the same thing. और पौलुस हमसे ये कह रहा है कि अन्य जाति से आए विश्वासी होकर हमें भी यही करना है. Remember our past. हमें अपने अतीत को स्मरण करना है. So that we can appreciate our present. ताकि हम हमारे वर्तमान को और थोड़ा सराह सके. In our verse today, in Ephesians chapter 2 and verse 12, Paul lists some of the things that we should always remember as Gentiles. आज के हमारे आयत के अंदर एफेसियों के दूसरे अध्याय 12वें आयत में वो कुछ ऐसे बातों की सूची हमें देता है जिसको हमेशा याद रखना है. अन्य जाति से आए विश्वासियों को याद रखना है. Because it will help us rejoice in our present. क्योंकि वो हमें मदद करेगा कि हम वर्तमान में और थोड़ा आनंदित हो पाए. Let me read for you Ephesians chapter 2 verse 11 and 12. मैं आपके लिए एफेसियों का दूसरा अध्याय और 11वां और 12वां आयत दोनों में पढ़ूंगा. Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. इस कारण स्मरण करो कि पहले तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. Now verse 11 and 12 forms one sentence. 11वां और 12वां आयत एक ही वाक्य है. Last time we learned from verse 11 that Paul was once again addressing the spiritual past of the Gentile believers in Ephesus. पिछली बार हमने 11वें आयत से ये सीखा कि पौलुस फिर एक बार एफेसस के अन्य जातियों से आए विश्वासियों के अतीत को देख रहा है. But this time he was addressing their past on the basis of their racial identity. लेकिन इस बार वो उनके अतीत को उनके जातीय पहचान के आधार पर देख रहा है या उसके जातीय पहचान के आधार पर उनको संबोधित कर रहा है. That is why Paul called them Gentiles in the flesh. उसीलिए वो उनको
शारीरिक रीति से अन्य जाति बुलाता है, which meant that they were not Jews, जिसका मतलब है कि वो यहूदी नहीं थे. He also told them that they were called uncircumcision by the Jews. वो उनको ये भी कहता है कि यहूदी उनको खतना रहित बुलाते थे. Who were proud about their own racial identity. ये यहूदी जो है अपने जातीय पहचान को लेकर घमंड करते थे. They were especially proud about their circumcision. खासकर इस बात को लेकर कि वो उन्होंने खतना करवाया है, इस बात को लेकर वो घमंड करते थे. But Paul felt that these Jews were turning circumcision into a reason for human boasting when it should actually be a reason for boasting in God. लेकिन पौलुस ये समझता था कि ये यहूदी लोग खतने को एक मानवीय घमंड का कारण बना रहे हैं, जबकि वो तो परमेश्वर पर घमंड करने का एक कारण होना चाहिए था. That is why he says that the circumcision which the Jews are so proud about was just a work of their hands. उसीलिए वो बोलता है कि जिस खतने के बारे में तुम इतना घमंड करते हो, वो तो केवल मनुष्यों के हाथों का एक काम है. But all this was a slight diversion from his main point. लेकिन ये सारी चीजें जो है उसके मुख्य विषय से थोड़ा हटकर था. Because he had begun verse 11 by saying, therefore remember. क्योंकि उसने 11वें आयत को ये बोलकर शुरू किया था कि इस कारण स्मरण करो. He wanted the Gentile believers to remember some specific things about their past. वो चाहता था कि अन्य जाति से आए विश्वासी कुछ खास बातों को स्मरण करें. Now Paul takes up that command once again in verse 12. अब पौलुस उसी बात को फिर से उठा रहा है 12वें आयत में. He says, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. वो उनसे कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. He wants them to remember 5 things about their spiritual past. वो चाहता है कि वो उनके आत्मिक अतीत में से 5 बातों को याद करें. 5 things which they did not have in the past. 5 ऐसी बातें जो उनके आत्मिक अतीत के भाग नहीं थे. But 5 things which the Jews had in the past. लेकिन ऐसी 5 बातें जिनको यहूदियों ने पाया था उनके अतीत में. Before we see what those 5 things are in detail, we must know that as Gentiles, God wants all of us to remember that our spiritual past was also like the past of the Gentiles. इन बातों को थोड़ा और गहराई से देखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने आत्मिक अतीत को इन अन्य जाति से आए विश्वासियों के साथ मिलकर देखें, क्योंकि हमने भी ये बातों को अपने अतीत में नहीं पाया था. We also did not enjoy many of the privileges that the Jews enjoyed. जिन सौभाग्यों को यहूदियों ने उन्होंने अनुभव किया, उन चीजों का अनुभव हमने भी नहीं किया था. So what are those 5 things? तो वो 5 बातें क्या है? Paul begins by saying that they were separated from Christ. That's the first point. पौलुस ये बोलकर शुरू करता है, पहली बात कि वो मसीह से अलग थे. अन्य जाति के से आए विश्वासी मसीह से अलग थे. Gentile believers were separated from Christ.
The word Christ means Messiah. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है मसीह, उसका मतलब है मसीहा. A Messiah who would come and save them from their sinful condition. एक ऐसा मसीहा जो आकर उनको उनके पापमय स्थिति से छुड़ाएगा. When Paul tells the Gentiles that you were separated from Christ, जब पौलुस अन्य जाति से आए विश्वासियों को कहता है कि तुम मसीह से अलग थे, he means that they did not have faith in a Messiah. वो कह रहा है कि तुम जो है एक मसीहा पर विश्वास नहीं करते थे पहले. Rather, on the contrary, the Jews had faith in a coming Messiah. लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत यहूदी लोग एक आने वाले मसीहा पर विश्वास करते थे. How did the Jews come to faith in a coming Messiah? यहूदी लोगों ने आने वाले इस मसीहा के ऊपर कैसे विश्वास करना शुरू किया? The answer is simple. उत्तर बिल्कुल सरल है. Because God communicated the gospel through the Old Testament prophets. क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने सुसमाचार को उन तक पहुंचाया. The Jews were given a glimpse of the coming Messiah in the very first book of their scriptures. यहूदियों को इस मसीहा का एक झलक मिलता है उनके पवित्र शास्त्र के पहले ही किताब के अंदर, उत्पत्ति 3 अध्याय और 15वें आयत में. In Genesis chapter 3 and verse 15, there God tells the devil who tempted human beings to sin that the seed of the woman, that is one of the descendants of Eve, will bruise his head. वहां पर परमेश्वर शैतान से कहता है, जिसने मनुष्यों को लालच देकर उनको पाप के अंदर डाला, वो परमेश्वर उस शैतान से कहता है कि स्त्री का एक वंशज अर्थात हव्वा का एक वंशज उसके सिर को कुचल डालेगा. And in that promise is nothing but the coming of the Messiah. और उस प्रतिज्ञा के अंदर हम उस आने वाले मसीहा का एक झलक देखते हैं. In fact, one of the earliest and important figures of Jewish history, Abraham, had welcomed the coming of the Messiah. यहां तक कि जो यहूदी इतिहास के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण लोगों में से एक अब्राहम ने मसीहा के आने की बाट जोई थी. इसको हम कहां पढ़ते हैं? Where do we learn this? In John chapter 8 and verse 56, Jesus says that Abraham saw his day and he was glad. यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय और 56वें आयत में वो कहता है कि अब्राहम ने उसका दिन देखकर वो आनंदित हुआ. एक बार हम उसको पढ़ेंगे. Let's read that. John chapter 8 and verse 56. यूहन्ना का 8वां अध्याय 56वां आयत. देखिए यीशु मसीह क्या कहता है. Let's see what Jesus says. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. वहां पर लिखता है कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था. उसने देखा और आनंद किया. Later on, through the temple sacrifices prescribed in the law of Moses, God pointed the Jews towards the sacrifice that the coming Messiah will make in order to atone for their sins. उसके बाद आप देखते हो कि मूसा के व्यवस्था के आधारित मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बलियों के द्वारा परमेश्वर ने उनको पापों के प्रायश्चित के लिए मसीहा जिस बलिदान को देगा उसके तरफ इशारा किया. This becomes
clear in Hebrews chapter 9 and verse 11 and 12. इसको हम इब्रानियों के किताब के अंदर पाते हैं और 9वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें आयत को हम देखेंगे. Hebrews chapter 9 and verse 11 and 12. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. So in the past, in the Mosaic covenant, the sacrifices were done through the blood of goats and calves. पुराने नियम के अंदर, मूसा के नियम के अंदर बलिदान को चढ़ाया जाता था. कैसे? आप एक बार पढ़ेंगे इसको. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया. तो मूसा की व्यवस्था में बलिदान दिया जाता था बकरों और बछड़ों का, लेकिन आखिर में यीशु मसीह आकर एक आखिरी और पर्याप्त बलिदान को चढ़ाता है. And Jesus comes and gives one and final sacrifice. Every prophet of the Old Testament pointed the Jews to the gospel. हर एक जो पुराने नियम का जो भविष्यवक्ता है, वो उस सुसमाचार के तरफ इशारा करता था. Every prophet of the Old Testament pointed the Jews to the gospel. इस बात को पौलुस बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है रोमियो के पहले अध्याय और उसके पहले 2 आयतों के अंदर. Let's see Romans chapter 1 verse 1 and 2. See what he writes. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures. पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी यानी सुसमाचार की उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा की थी. The Old Testament did not give total clarity about the gospel and the coming Messiah. पुराना नियम जो है पूरी स्पष्टता के साथ सुसमाचार नहीं दे पाता है और वो आने वाले मसीहा के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं दे पाता है. It was hazy. वो एक थोड़ा धुंधला धुंधला सा था. That is why Paul calls it a mystery which has been revealed in his generation to the apostles and prophets. उसीलिए पौलुस जो है सुसमाचार को एक भेद बताता है जिसका प्रकाशन उसकी पीढ़ी में प्रेरितों और उस समय के भविष्यवक्ताओं को किया गया था. That is written in Ephesians chapter 3 and verse 4 and 5. देखिए तीसरे एफेसियों का 3रा अध्याय 4 और 5वें आयत में पौलुस क्या बोलता है. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. वो बोलता है जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह की वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है.
But the Jews still knew about a coming Messiah through the gospel revealed by the Old Testament prophets. लेकिन फिर भी यहूदी इस आने वाले मसीहा के बारे में जानते थे भविष्यवक्ताओं के सुसमाचार के द्वारा. God communicated it to them. परमेश्वर ने इस बात की सूचना उन तक पहुंचाई थी. They put their trust in the coming Messiah. उन्होंने आने वाले उस मसीहा के ऊपर विश्वास किया. So in the Old Testament, Jews were also saved by the grace of God through faith in Jesus Christ. इसीलिए पुराने नियम के यहूदियों ने भी उद्धार पाया परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा. On the other hand, the Gentiles were completely shut out from the possibility of a coming Messiah. दूसरी ओर अन्य जातियों के लोगों के पास एक आने वाले मसीहा की सूचना बिल्कुल नहीं थी. वो बिल्कुल उससे वंचित थे. That is why Paul tells the Gentiles that you were once separated from Christ. उसीलिए पौलुस अन्य जातियों से कह रहा है कि ऐसा एक समय था जब तुम मसीह से अलग थे. The history of the gospel among the Gentiles is just around 2000 years old. जो सुसमाचार का इतिहास है अन्य जातियों के बीच में वो लगभग 2000 साल पुराना है. Our forefathers who lived before that, they had never heard about a Jewish Messiah. इन 2000 सालों से पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कभी एक यहूदी मसीहा के बारे में सुना भी नहीं था. Not because missionaries could not reach them, ये इसलिए नहीं कि कोई मिशनरी उन तक पहुंच नहीं पाया, but because God had ordained it that way, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही इनको ठहराया था. In his wisdom, he had decided that the gospel would first be preached among the Jews for many centuries before it is preached among the Gentiles. परमेश्वर ने अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार ये निर्णय किया था कि कई शताब्दियों तक सुसमाचार का प्रचार पहले यहूदियों के बीच में होगा, इससे पहले कि उसका प्रचार अन्य जातियों के बीच में हो. The history of salvation is in the sovereign hands of God. उद्धार का जो इतिहास है वो परम प्रधान परमेश्वर के हाथों में है. Everything happens according to his will. सारी बातें उसके इच्छा के अनुसार होती है. Many Malayali Christians like me, मेरे जैसे बहुत सारे मलयाली क्रिश्चियंस इस बात पर घमंड करते हैं. They take pride in the fact that Apostle Thomas came to the shores of Kerala around 52 AD. इस बात पर घमंड करते हैं कि प्रेरित थोमा जो है वो केरल के समुद्र में 52 AD में आया. And we were the first to hear the gospel in India. और भारत में सुसमाचार सुनने वाले हम सबसे पहले थे. But it kills my pride to think that we were once spiritually dead people walking in our trespasses and sins. लेकिन ये सोचकर मेरा जो घमंड है वो कुचल दिया जाता है जब मैं सोचता हूं कि हम ऐसी एक जाति थे जो पहले आत्मिक रीति से मरे हुए थे और अपराधों और पापों में चलते थे. We were once ignorant, blind, deaf to the gospel. ऐसा एक समय था जब हमारी जाति सुसमाचार के विषय में अज्ञानी, अंधे और बहरे थे. We had nothing to boast about any Christian tradition. हमारे पास एक ऐसा समय था जब हमारे पास हमारे मसीही परंपरा के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं था. Had it not been for the grace of God, our entire race would have perished in hell. परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो हमारी सारी जाति नरक के अंदर नष्ट हो जाती. And as a race, we often forget this painful past. और हमारी जाति जो है अक्सर इस अतीत को भूल जाता है. Let us not forget that past, rather remember who we were. बल्कि हम भूल ना जाए हमारे अतीत को, उसको स्मरण करें ताकि हम जाने कि हम पहले कैसे थे, किस स्थिति में थे. The second thing that Paul tells the Gentile believers of Ephesus is that they were excluded from the citizenship of Israel. दूसरी बात जिसको पौलुस अन्य जातियों से आए विश्वासियों से कहता है वो ये है कि वो इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे.
As I told you last week also, when God chose the Jews to be his people, it was not because they were special in any way. पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने जब यहूदियों को चुनकर अपने लोग बनाया, ये इसलिए नहीं था कि वो कोई खास प्रकार के लोग थे. The only reason was that God loved them. एक ही कारण था कि परमेश्वर ने उन पर प्रेम रखा. उसको एक और बार हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड दैट अगेन. व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7 and verse 7 to 8. व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय और 7वां और 8वां आयत. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you. For you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. वो बोलता है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह कर कर तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे. यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया है, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी. As we read there, this election of God was as per the promise God made to Abraham, Isaac and Jacob. जैसे कि वहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का ये चुनाव उस शपथ पर आधारित है जिसे उसने उनके पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था. The Jews are the physical descendants of Abraham, Isaac and Jacob. यहूदी लोग जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज है. God had also promised to Abraham, Isaac and Jacob that he would also give their descendants a land of their own. परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से ये प्रतिज्ञा की थी कि उनके वंशजों को वो एक जमीन देगा. The land of Canaan, which we have come to know as the promised land. कनान का वो देश जिसको हम आज वाचे का जमीन भी बोलते हैं. Let us read those portions. हम उन आयतों को हम पढ़ेंगे जब परमेश्वर ये प्रतिज्ञा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ करता है. Let's read those portions where God makes this promise to Abraham, Isaac and Jacob. Genesis 15 verse 18 to 21. उत्पत्ति का 15वां अध्याय 18 आयत से 21वां आयत. On that day the Lord made a covenant with Abraham saying, to your offspring I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites and the Jebusites. वो कहता है कि इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी. मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, केनिजियों, कदमोनियों, हितियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है. इसी बात को वो इसहाक के साथ भी दोहराता है. The same thing promise he repeats with in different words, but he repeats to Isaac. उत्पत्ति का 26वां अध्याय और उसके तीसरे आयत से 5वां आयत. Genesis 26 verse 3 to 5. Sojourn in this land, and I will be with you and will bless you. For to you and to your offspring I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham your father. I will multiply your offspring as the stars of heaven, and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.
वो बोलता है 26वें आयत के अंदर कि तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। Let's the same thing the promise is made to Jacob in Genesis 28. इसी प्रतिज्ञा को याकूब को भी किया जाता है उत्पत्ति के 28वें आयत और 13वें आयत में। Genesis 28 and verse 13. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. वो बोलता है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। In this a new nation was born on the face of this earth. इस तरह से पृथ्वी के ऊपर एक नए राज्य की स्थापना हुई, एक नए राज्य की स्थापना हुई। And its citizens were only Jews, a particular race. और इस राज्य के जो प्रजा थे वो एक खास जाति थी। The rest of the humanity called the Gentiles could not be citizens of this nation. बाकी के जो मानव जाति है जिनको हम अन्य जाति कहते हैं वो इस राज्य के प्रजा नहीं बन सके। From the beginning to end, the creation of this nation was the work of God. इस राज्य की स्थापना शुरुआत से अंत तक ये परमेश्वर का एक काम था। That is why Paul tells the Gentiles that in the past you were excluded from the citizenship of Israel. उसीलिए पौलुस अन्य जातियों से कहता है कि तुम इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। When God set his redemptive plan into action, जब परमेश्वर ने छुटकारे के योजना को कार्यशील किया, he chose the Jews and made a nation out of them. उसने यहूदियों को चुनकर उनको एक राज्य बनाया। He kept us and our forefathers out of it. उसने हमको और हमारे पूर्वजों को उससे अलग रखा। He excluded every other race. Indians, Chinese, Americans, Russians, everyone. उसने बाकी सब जातियों को इसमें से अलग रखा। भारतीय हो, चीनी हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, जो भी थे ये सब उसमें नहीं थे। Does it kill our pride to know this? क्या ये जानने से हमारा घमंड कुचला जा रहा है? It should kill our pride. हमारा घमंड को कुचला जाना चाहिए। Especially at a time when nationalistic pride is surging through our nation. खासकर इस समय जब हमारे देश के अंदर राष्ट्रवादी घमंड बढ़ता ही जा रहा है। Many people think that we are a superior race. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो बाकी सब जातियों से और ज्यादा श्रेष्ठ हैं। I am not talking about everyone here. मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. But there are Indians who hate Bangladeshi migrants, Americans who hate Asian migrants, Europeans who hate refugees from war-torn Middle East. ऐसे भारतीय है जो बांग्लादेशी प्रवासियों से बैर रखते हैं, अमरीकी है जो एशिया से आए प्रवासियों से बैर रखते हैं, ऐसे यूरोप के लोग हैं जो मिडिल ईस्ट से आने वाले शरणार्थियों से बैर रखते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन गॉड चोज अ रेस फॉर रिडेम्पशन, आवर रेस वाज नॉट चोजन। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने जब छुटकारे के लिए एक जाति को चुना था तब हमारी जाति को नहीं चुना गया था। Our skin color, our height, our intellect, our culture made no difference to him. हमारे जो चमड़ी का जो रंग है, हमारी जो हाइट है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी संस्कृति से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ा। Knowing this should make us leave all
all our racial pride behind. ये जानने से ये जरूरी है कि हम हमारे सारे जातीय घमंड को पीछे छोड़ दें. The third thing, तीसरी बात जो पौलुस अन्य जातियों के विश्वासियों से करता है, the third thing that God tells the Gentile believers of Ephesus is that they were strangers to the covenants of promise, कि वो प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे. The word strangers essentially means to not know someone or something. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है भागी ना थे, वो एक्चुअली वो जो वर्ड है वो होना चाहिए परदेसी थे. प्रतिज्ञा के वाचाओं के लिए वो परदेसी थे. Paul says that the Gentiles were foreigners to the covenants of promise. पौलुस अन्य जातियों से कहता है कि तुम प्रतिज्ञा के वाचाओं के लिए परदेसी थे. Some scholars believe that the covenants refer to various covenants made with the people of Israel. कुछ बाइबल के पंडित ये सोचते हैं कि वाचाओं का मतलब है अलग अलग वो वाचाएं जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के साथ बनाया. The covenant with Abraham, with Isaac, with Jacob, with Israel, with David. जैसे उसने अलग अलग वाचाओं को बनाया अब्राहम के साथ, याकूब के साथ, इसहाक के साथ, इज़राइल के साथ, दाऊद के साथ. But I don't think that it is referring to the Mosaic covenant which God made with Israel. लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूं कि यहाँ पर वो मूसा के द्वारा बनाए गए वाचे के बारे में बात कर रहा है जो उसने इज़राइल के साथ बनाया. Because that was a conditional covenant. क्योंकि वो एक शर्त की वाचा थी, शर्त पर आधारित एक वाचा थी. It was not a covenant of promise. ये एक प्रतिज्ञा की वाचा नहीं थी. The Mosaic covenant said that if Israel keeps faith and obeys the commandments, then God will bless them. वहां पर मूसा के नियम के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अगर इज़राइल विश्वास को बनाए रखता है और उसके नियमों को पूरा करता है तो परमेश्वर उनको आशीषित करेगा. So faith had to be proved and obedience had to be displayed. तो उसका मतलब है विश्वास को साबित करना था और आज्ञाकारिता को दर्शाना था इससे पहले कि परमेश्वर उनको आशीषित करे. So they had to prove their faith and show their obedience before God could bless them. In Jeremiah 31 verse 32, God says that Israel broke that covenant. यिर्मयाह के 31वें अध्याय 32वें आयत में परमेश्वर कहता है कि इस्राएल ने उस वाचे को तोड़ दिया है. But the covenant with Abraham, Isaac, Jacob, David and the new covenant were made with people who already had faith. लेकिन अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ये नया वाचा उन लोगों के साथ बनाया जाता है जो पहले से ही विश्वासी है. They were righteous by faith. वो अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे हैं. And therefore, through a covenant, God promises to bless them. तो इसीलिए परमेश्वर उनको एक वाचा बनाकर उनको आशीषित करता है. उसीलिए आप जब अब्राहम के साथ का जो वाचा है उत्पत्ति के 17वें अध्याय पहले 8 आयतों में, इसहाक के साथ जो वाचा है 28वें अध्याय 13वें और 15वें आयत तक, दाऊद के साथ जो वाचा है दूसरे शमूएल 7वें अध्याय 8वें और 16वें आयत तक, और नया वाचा है, इन सब के अंदर आप देखोगे कि परमेश्वर बोलता है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस बात को करूंगा. That is why you see that when you look at the covenants made with Abraham in Genesis 17, with Isaac in Genesis 26, with Jacob in Genesis 28, with David in 2 Samuel 7, with all the believers in Jeremiah 31, he says, I will do this, I will do this, I will do this. That means the blessings will come true. उसका मतलब है इन आशीषों को परमेश्वर पूरा करेगा.
Unlike the Mosaic covenant, all these covenants are everlasting covenants. मूसा के द्वारा किए गए वाचे के से अलग ये सारी वाचाएं अनंत है, अनंत वाचाएं हैं. दे विल नेवर बी ब्रोकन. इनको ये टूटेंगी नहीं. उस प्रकार की वाचाएं हैं. बिकॉज गॉड्स राइचियसनेस हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू इट्स पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ऑफ देयर फेथ. क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता इन लोगों के ऊपर दी गई है, क्योंकि ये वाचाएं प्राप्त करने वाले लोगों के उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया है. They don't need to prove anything more. अब उनको कोई चीज साबित करने की जरूरत नहीं है. There is only one thing left now. एक चीज बाकी बच चुका है और वो है परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा. And that God will fulfill the promises that He made in these covenants. But unlike the Mosaic covenant, the covenants of promise are not fulfilled here in this life. मूसा के नियम के विपरीत से अलग भिन्न ये जो प्रतिज्ञा की वाचाएं हैं वो इस जीवन में पूरी नहीं होती. That is why in Galatians chapter 3 and verse 18, Paul says that the promise mentioned in these covenants is actually an inheritance. उसीलिए गलातियों का 3 अध्याय 18वें आयत में पौलुस कहता है कि इन वाचाओं का जो प्रतिज्ञा है वो एक मिरास है जिसको अभी तक आपने पाया नहीं है. इट इज एन इनहेरिटेंस विच यू हैव नॉट येट रिसीव्ड. एक बार उसको पढ़ेंगे. गलातियों का 3 अध्याय 18वां आयत. लेट्स रीड गैलेशियंस चैप्टर 3 and verse 18. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. So the promise is that they will receive an inheritance. यहां पर लिखा गया है क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है. यानी प्रतिज्ञा क्या है कि वो अपने लोगों को एक मिरास देगा. मिरास क्या है वो अभी तक आपने पाया नहीं है. इट इज समथिंग दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड येट. एंड वी लर्नड हियर इन एफेशियंस that in Paul's language inheritance refers to our full redemption. उसीलिए हमने एफेसियों के पत्र के अंदर ये सीखा कि पौलुस की भाषा में अगर जब मिरास शब्द का इस्तेमाल होता है उसका मतलब है वो पूर्ण छुटकारा जो हमें अनंतता में प्राप्त होगा. So the promise of eternal redemption runs through these covenants. परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा पूर्ण छुटकारा अनंत छुटकारा होगा वो इन सारे वाचाओं के अंदर शामिल है. That is why God promised to give Canaan as an everlasting possession to Abraham and his descendants. उसीलिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि कानान देश युगों युगों तक या अनंतता तक अब्राहम और उसके वंशजों को दिया जाएगा. वो भूमि उनको दी जाएगी. He promised to establish David's throne forever through his son. उसने ये परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि उसका राज गद्दी उसके पुत्र के द्वारा सदैव स्थिर रहेगी. So Paul says that in the past Gentiles were strangers to these covenants of promise. तो पौलुस यहां पर अन्य जातियों के विश्वासियों से कहता है कि तुम वाचाओं के लिए परदेसी थे, वाचाओं के प्रतिज्ञा के प्रति तुम परदेसी थे. God had not made the promise of an eternal inheritance to them. परमेश्वर ने अभी तक वो प्रतिज्ञा उनसे नहीं की थी कि वो अनंत एक छुटकारे को पाएंगे. Jews were the only beneficiaries of these covenants of promise. सिर्फ यहूदी इन प्रतिज्ञा के वाचाओं के उत्तराधिकारी थे. And because the Gentiles did not have the hope of an eternal inheritance
through the covenants of promise, Paul says that they were people having no hope. उसीलिए यहाँ पर पौलुस उनके क्योंकि अन्य जातियों के पास प्रतिज्ञा के वाचाओं के द्वारा एक अनंत छुटकारे की आशा नहीं थी, पौलुस उनसे कहता है कि तुम लोग आशाहीन थे. That's the fourth thing that Paul tells the Gentile believers. ये चौथी बात है जो पौलुस जो है अन्य जातियों से आए विश्वासियों से कहता है. This is also what we understood when we studied the subject of the hope of God's calling in Ephesians chapter 1 and verse 18. ये वही बात है जिसको हमने सीखा एफेसियों के पहले अध्याय 18वें आयत में, जहां पर परमेश्वर के बुलाहट की आशा के बारे में हम बात करते हैं. We understand that our hope is fulfilled only in heaven. जहां हम समझते हैं कि हमारी ऐसी आशा है जो सिर्फ स्वर्ग में पूरी होगी. That is why in Colossians chapter 1 and verse 5, Paul says that it is a hope laid up for you in heaven. उसीलिए पौलुस कहता है कि आशा की हुई वस्तु स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखी गई है. We understood that our hope is fulfilled only in eternity. हमने इस बात को भी समझा कि हमारी जो आशा है वो अनंतता में पूरी होगी. That is why in Titus chapter 1 verse 2 and chapter 3 verse 7, Paul talks about the hope of eternal life. उसीलिए तीतुस क्यों लिखे गए पत्र के अंदर पौलुस अनंत जीवन की आशा की बात करता है. So in our spiritual past, we Gentiles lived in this world having no hope of heavenly blessings, no hope of eternal blessings. हमारे आत्मिक अतीत में हम इस दुनिया में आशाहीन लोगों की तरह जीते थे. हमारे पास ना स्वर्गीय आशीषों का आशा थी, ना अनंत आशीषों की आशा थी. God gave the promise of eternal redemption through his covenants only to the Jews. परमेश्वर ने सिर्फ यहूदियों को अपने वाचाओं के द्वारा अनंत छुटकारे की प्रतिज्ञा दी है. Other communities had no such hope. दूसरे जातियों के पास यह आशा नहीं थी. Imagine a rich man promises to help you and your friend. सोच के देखें कि एक धनी व्यक्ति आपको और आपके मित्र को मदद करने की बात करता है. He gives you enough wealth to live luxuriously for 10 years. वो व्यक्ति आपको इतना धन देता है कि आप अपने सारे सुखों को पूरा कर सके अगले 10 साल. He does not give any wealth to your friend but adopts him as a son. लेकिन आपके मित्र को वो कोई धन नहीं देता है, लेकिन उसको अपना लेपालक पुत्र बनाता है. Which is greater? इसमें से कौन सा बड़ा है? Obviously, your friend got much more. आपके दोस्त को कहीं ज्यादा मिला आपसे. Because everything that the rich man has would now belong to your friend for his entire life. क्योंकि इस धनी व्यक्ति के पास जो भी था वो सब आपके मित्र का हो गया और पूरे जीवन काल के लिए हो गया. In the same way, there were many races which were larger and stronger than the Jews. ऐसी बहुत सारी जातियां थी जो यहूदियों से बढ़कर ज्यादा ताकतवर थी. God had ordained that. परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था. But they would enjoy those privileges only for a limited time. लेकिन वो उन आशीषों को सिर्फ एक सीमित समय तक उसका आनंद उठा पाएंगे. And that all of them will perish. उसके बाद वो सब नष्ट हो जाएंगे. But God had promised eternal redemption with every kind of blessing only on the Jews. लेकिन परमेश्वर ने एक अनंत छुटकारा की प्रतिज्ञा दी सिर्फ यहूदियों को. We have to admit that the Jews were a blessed race. हमें ये मानना पड़ेगा कि यहूदी सच में एक आशीषित जाति थे. While we were not, हम नहीं थे. They were blessed forever. उनको हमेशा के लिए आशीषित किया गया था. But all our hope was just limited to this life. हमारी जो आशा थी सिर्फ इस जीवन तक ही सीमित थी. पांचवी बात और आखिरी बात, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, पौलुस अन्य जातियों के विश्वासियों से कहता है तुम इस जगत में ईश्वर रहित थे. Paul tells the Gentile believers
that you were without God in the world. This phrase could mean that they did not believe in any God. इन पदों का मतलब ये हो सकता है कि अन्य जाति किसी ईश्वर पे पहले विश्वास नहीं रखते थे. But that cannot be the case, because in those days most Gentiles believed in a God or even a pantheon of gods. क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन दिनों में अन्य जाति किसी देव या देव के समूह पर विश्वास रखता था. इस बात को पौलुस बोलता भी है, and Paul tells this. 1 Corinthians chapter 8 and verse 5. पहला कोरिन्थी 8वां अध्याय और 5वां आयत. For although there may be so-called gods in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords. So here Paul acknowledges that for the Gentiles there were many gods and many lords. यहाँ पर वो बोलता है यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, यानी अन्य जातियों के बीच में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु थे. So the phrase could also mean that they were not devoted to their God or gods. इन पदों का मतलब ये भी हो सकता है कि वो शायद किसी देव या देव के समूह पर पूरी तरह समर्पित नहीं थे उनके प्रति. Even that cannot be Paul's point. ये भी पौलुस का तर्क नहीं हो सकता है, because he talks about how Gentiles were like slaves to those who were by nature no gods. क्योंकि वो बताता है कि कैसे अन्य जाति के लोग उनके ईश्वरों के दास थे, जो स्वभाव ही से परमेश्वर नहीं थे. Completely devoted to God or gods, like a slave devoted to his master. जैसा एक दास अपने मालिक के प्रति समर्पित रहते हैं, वैसे ही वो अपने देव या देव के समूह के प्रति वो समर्पित थे. इसको हम पढ़ते हैं गलातियों के 4 अध्याय 8वें आयत में. We read this in Galatians chapter 4 and verse 8. इसको हम पढ़ेंगे. Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods. पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं. The phrase that Paul is using here in this verse means that Gentiles were forsaken by the true God. यहाँ पर पौलुस अन्य जातियों से आए विश्वासियों को कहता है कि तुम सच्चे परमेश्वर ने उनको त्याग दिया था. Who is the God of Israel? जो इज़राइल का परमेश्वर है. That is why Paul says that they were without God. इसलिए पौलुस उनसे कहता है तुम ईश्वर रहित थे. The God of Israel did not reveal the gospel to them through the prophets. इज़राइल के परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा सुसमाचार का प्रकाशन उन पर नहीं किया था. That is why they were separated from Christ. इसीलिए वो मसीह से अलग थे. He had created a nation for himself, but he included only the Jews in it. Every other race was excluded from his citizenship. उसने एक राज्य को बनाया, स्थापित किया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ यहूदी जाति को जोड़ा, बाकी हर जाति को उस प्रजा के पद से उसने अलग किया. He had not made a covenant of promise with the Gentiles. उसने प्रतिज्ञा की वाचाओं को अन्य जातियों के साथ नहीं किया था. Therefore they had no eternal or heavenly hope. इसीलिए उनके पास कोई अनंत या स्वर्गीय आशा नहीं थी, वो उससे वंचित थे. Because of all these reasons, Paul says that in the past the God of Israel had forsaken the Gentiles. इसलिए वो बोलता है कि पुराने दिनों के अंदर परमेश्वर ने अन्य जातियों को त्याग दिया था. They were without God in this world. इस जगत में वो ईश्वर रहित थे. This world is a sinful world. ये दुनिया एक पापमय जगत है. There are evil spiritual powers which try to keep human beings under bondage. ऐसी दुष्ट आत्मिक ताकतें हैं जो मनुष्यों को दासत्व में रखती है. There are sinful people who are controlled by these evil spiritual powers,
who try to oppress other human beings with their hatred, violence and injustice. ऐसे पापमय लोग इस दुनिया में रहते हैं जो इन दुष्ट आत्मिक ताकतों से नियंत्रित है। वो दूसरे लोगों को अपने बैर, अपनी हिंसा और अन्याय के द्वारा दबा के रखते हैं। There is only one benevolent being over this sinful world. इस दुनिया के ऊपर एक ही उदार व्यक्ति है और वो है इज़राइल का परमेश्वर, and that is the God of Israel, who can rescue them from the bondages of evil powers, जो उनको उन दासत्व से छुड़ा सकता है, who can save them from the hands of sinful men, पापी मनुष्यों के हाथों से वो छुड़ा सकता है, and give them the hope of eternal life, और उनको एक अनंत जीवन की आशा दे सकता है। Imagine he also forsakes them. सोच कर देखो अगर वो भी उनको त्याग दे। Human beings are left to live a miserable life. उसके बाद मनुष्य इस पृथ्वी पर एक दयनीय जीवन बिताने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। And because of their sinful condition, he condemns them to eternity in hell. उनके पापमय स्थिति के कारण वो उसे दंड भी देता है, अनंत मृत्यु का दंड देता है। Where there will be unending suffering and pain, जहां पर सिर्फ दुख और पीड़ा का अनुभव होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। That was the condition of every Gentile. ये स्थिति थी हर अन्य जाति की, including you and me. आपके और मैं मुझे जोड़कर हमारी स्थिति भी यही थी। This was horribly bad news for us. ये हमारे लिए अत्यंत बुरी खबर थी। And it is important that we always remember our past condition. इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों को याद करें कि हम कैसे थे। स्मरण करो आपका आत्मिक अतीत कैसा था। Only then we can really appreciate the good news that Paul will declare in the next verse. तभी जाकर हम पौलुस जिस सुसमाचार का प्रचार अगले आयत में करेगा उसको हम सराह सकते हैं। He says that through the sacrifice of Jesus on the cross, God has now rescued us and spoken every blessing on us which belonged only to the Jews. उसीलिए पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो क्रूस पर किया गया, परमेश्वर ने हमको इस स्थिति में से निकाला और हर एक आशीषों को हमारे ऊपर बोला जो सिर्फ यहूदियों के पास था। और उसको हम अगली बार देखेंगे। We'll look at it the next time.